मुजफ्फर अब्बास हाजिर है ते मेरे नाल मौजूद हैं रोज़ दी कार सही शकील बलोच। शकील खां, क्या हाल चाल है? ठीक हो? बिल्कुल ठीक गजनफर खान, शुक्र है। क्या हाल है ਤੁਹਾਡੇ? ਮਾਤਾ ਤੁਹਾਡਾ क्या हाल है? खैर खैरियत है? दोस्त भी बिल्कुल खैर खैरियत नाल होसन। दोस्तें को अरदास यह है कि दोस्त सारे नाल जुड़ा मन, सारे नाल जुड़न का जिहड़ा तरीकाकार है बिल्कुल सादा है। फेसबुक ते अगर ਉਹ ਸਾਕੂ ਦੇ ਦੇ बैठन ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੰਜ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਆਂਦੀ ਪਈ ਵੀਡੀਓ ਆਂਦੀ ਪਈ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ। ਉਤਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ, ਸਵਾਲ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾ मन। ट्विटर ते एक्स ते अगर कोई दोस्त साकू दे दे बैठन सारे नाल जुड़े बैठन ते ਉਹ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥਾਂ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਲੋਕ ਵੀ ਜੁੜਾਵਣ। ਸ਼ਕੀਲ ਖਾਨ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਅਸਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ। क्या? ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਅੱਜ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੂਏਂਦਾਰ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤੇ। ਸ਼ੋਲਾ ਬਿਆਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਲਾਨਾ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤਰੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਮੌਜੂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮੌਜੂ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 26ਵੀਂ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਨਕਸ਼ਾਫਾਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਖੁਸ਼ ਸਰੂਬੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਆਦੇ ਪੈਣ ਕਿ ਸਦਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਨਾਜ਼ੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਗਿਣ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਦੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਗਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਕਿੱਸਾ करूं पहले या मौलाना ते शोला बयानी ਦਾ ਤذਕਰਾ ਛੇੜੂ? ਸ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਿੰਦੇ हैं। शाम ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੂੰ, 56 ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ, ਇਨਫੈਕਟ 56 ਸਾਲ। 56 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਸ਼ਾਰ ਅਲ ਅਸਦ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਇਕਤਦਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ। ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਈ ਅੱਖੀਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਹੂੰ ਇਹ ਕੋ ਆ ਕੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਯਾਦ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇਕਤਦਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਠੀਕ। ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਕਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਅਸਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਹੈ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ईरानी कैंप का हिस्सा होंदा भला बाद हूँ च हालात तब्दील थे। अमेरिकन दी इन्वॉल्वमेंट दे बाद रूस दी इन्वॉल्वमेंट थई है ते रूस दे हूँ आवन दे नाल वल रूस बहुत सारा खित्ते दे विच असर रसूख रखेंदे और काफी हूँ अरसे के रूस जंग दे विच बराह रास्त खुद इन्वॉल्व हुआ। रूस दे अपने इत्थां मफादात भी वाबस्ता हैं इत्थां काफी ज्यादा फौजी हूँ ये भी हैं उहदे मफादात जेह्ड़े हैं ते ईरान हूँ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਤਸਲਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਆ ਆਇਆ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਊਟਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਥਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਲੋਕ ਹਨ ਗਰੁੱਪ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਹਨ ਉਹ ਕहीं ना कहीं ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੇ ਲੱਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਮਾਸ ਇਟਸੈਲਫ ਆਪਣਾ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲਬਨਾਨ ਵਾਲੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਇਹ ਥਈ ਹੈ ਲੜਾਈ ਥਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਇੱਥਾਂ ਕਾਫੀ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ हूँ ਬਸ਼ਾਰ ਦੇ ਇਕਤਦਾਰ ਕੋ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਵੱਲ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੋਲੇ 'ਚ ਫਸੇ ਵੱਧਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਸ਼ਾਰ ਅਲ ਅਸਦ यूक्रेन वार की वजह कन्नै रशिया दी भी सारा फोकस वार दे उत्ते चलिया गया।
अच्छा ये हम्म शिकस्त एक वड्डी वड्डा एक वड्डी शिकस्त है ऊ ग्रुप दी या ऊ जेड़े ई तासुर को यो करेंदे हन कि खित्ते दी सियासत दे विच या खित्ते दे मामलात दे विच या खित्ते दे ही दे विच रूस है या अमरीका है यो है चाइना है उंदी इन्वॉल्वमेंट वधदे होए असर और रसूख काफी मैटर करेंदा है in हम्म शिकस्त कन्नै इन्ने को बहुत बड़ा रूस को एक बड़ा सेटबैक है लेकिन रूसी जेह्ड़े हुकूमत है उंदा आखना एह् है कि हम्म बशार अल असद जेह्ड़ा है अच्छा इंदे उत्ते मैं बाद च कोला गल्ल करगे तां कि बशार अल असद दे बारे च रूस क्या आखदा बैठा है ना ते इन ठीक है। सारी साल दे विच बशार अल असद असल च इक तुहानू याद होसी अरब स्प्रिंग चलेआ हा ठीक है ना ते हम्म मूवमेंट चली आई मुख्तलिफ शहरें दे विच हम्म मुल्कें दे विच एह् मूवमेंट अरब स्प्रिंग दे नाम नाल शुरू होई शहरी लोगों दे इ'यै शहरें दे हम्म इ'यै मकामी अपने अपने हर मुल्क दे शहरी अपने मुल्क दे विच बुनियादी तौर ते अरब पूरे दे विच तुस देख गिनो कि जमहूरियत किते है ही कैन हम्म ठीक है उत्थे है ही डिक्टेटरशिप लिहाजा लोग कई भी तर्ज हुकूमत होंदे उन कने मजीद बेहतर मजीद या करन दी ख्वाहिश च बधदे होंदे कहीं कने गदनफर साहब अगर उन्हें को मनो सलवा उतरदा पिया होंदे कहीं दे उत्ते ना ते ओह् हम्म आखदन कि साकू तो असेंगी चाहिदा है दाल साकू तो थूम चाहिदा है ठीक है ना सही हम्म ये हम्म जो है मूवमेंट शुरू थी है स्प्रिंग अरब स्प्रिंग ठीक है ना इंदू ते बड़े होप्स पैदा थी गया पड़ी या थी गई तहरीर स्क्वायर कने शुरू थई ते किथां कने किथां जज़ायर कने ते मिस्र कने ते शाम दे विच शुरू थी गया है सारा सिलसिला ते हम्म उवेले कुछ अरब स्टूडेंट्स जेह्ड़े हन ना ओह् बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान दे विच तालीम दे सिलसिले विच आए होए हन असां भी आखे कि इन मामले दी अंडरस्टैंडिंग वास्ते कि एह् अरब स्प्रिंग है क्या इत्थों दे लोग क्या चांह्दे पे न थींदा क्या पे असां इक हम्म डायलॉग रखेआ प्रेस क्लब दे विच मुल्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दे ज़ेरे इह्तमाम ते हून ठीक है। डायलॉग दे विच सर साहब असां सडवाया इन्ने अरब स्टूडेंटें को जेह्ड़े यूनिवर्सिटी च रैंह्दे पे उ'नें बिच्च जेह्ड़ा सब तों उ'नें दा एक्टिव ते वोकल बंदा हा ओह् हम्म शाम दा हा ठीक है ठीक ते है। ओह् बड़ा एक्साइटेड हा ठीक है ना मैं उ'नें हम्म कोले पुच्छेआ मैं कि यार तोआकू क्या मसले दरपेश है तोआकू कोई हम्म फाइनेंशियल इशू हुकूमत तुहाडा फाइनेंशियल ही दे विच ख्याल नहीं रखदी उ'नें कहंदे साढ़े फाइनेंशियल कोई मसले कै नहीं ठीक है ना ठीक है। साकू घर खावण पीवण लिबास तालीम इलाज सब कुछ साडी रियासत करेंदी है साकू उंदे उत्ते कई ठीक। भी किस्म दी कोई भी परेशानी रत्ती भर भी कै नहीं यहाँ तक कि अगर साकू घर दे हम्म विच फ्रिज भी चाहिदा है तां ओह भी साकू रियासत प्रोवाइड करेंदी है ठीक है उ'आं कि मैं पाकिस्तान पढ़न आया ओह्दा मेरी सारी दी सारी तालीम जेह्ड़ी है ओह् रियासत बर्दाश्त करेंदी पई है ते मेरा सफीर मेरे नाल जेड़ा लैंदा कि यार तुसां एह् क्या करेंदे पे वे तुसां एह् जेह्ड़ा कम्म करेंदे पे वे इंदे नाल जेह्ड़ा ऐ शाम अबतरी दी तरफ लग्गा वैसी खून खराबे दी तरफ लग्गा वैसी एह् जेह्ड़े बेनिफिट्स तुसां हासिल करेंदे पे वे एह् सारी चीज़ां लोगें को मिलण बंद थी वेंदे ना इन्ने मामलात च आओगे मैं आखेआ वल तुआड़ा मसला क्या है उन्ने हम्म अग्गें कदें बड़ी ओह् मेरे को क्लिक करिंदी है कि अज्ज जेह्ड़े ग्रुप ने आके है सुल क्या नां है ग्रुप दा जिन्ने अज्ज के जिंदगी ने यो कीते दे तहरीर है सो तहरीर हैयत तहरीर अल शाम। हैयत शाम तहरीर अल शाम। शाम हैयत अच्छा। तहरीर शाम ते मैं को बंदे दी गाल खड़ गई ज़हन च उ'नें आखेआ असें गाल एह् कि साकू मसीतें विच नहीं वञन दिंदे ठीक है हम्म ना असां उत्थै मसीतें च वेंदे आं ते साढ़े पिच्छों जिनसियां आह्ले होने ते असां उत्थै हम्म बैठ के गुफ्तगू नहीं से कर सकदे साढ़े पिच्छों साकू नहीं पता होंदा साढ़े फैमिली दा केह्ड़ा बंदा साढ़ा जसूस है ते इ'यां हम्म किस्म दी सानू शख्सी अज़ादियां कहनी ठीक है ना मज़हबी ठीक। ज़्यादा शख्सी ते मज़हबी अज़ादियां साकू कहनी ही वजह कन्नै असां ई सारी तहरीक दा हिस्सा बनदा ऐ तैं और सारा चीज़ां पर उंदे बाद 2011 दे जेह्ड़े ओह् मुज़ाहिरे शुरू थे गदनफर साहब बशार अल हम्म असद ने उनको सख्ती दे नाल कुचल लिता ओह् पीसफुल मुज़ाहिरे हन उ'नें को उ'नें सख्ती दे लेकिन एह् है कि मुज़ाहिरे तां जेल्लै शुरू थी वेंदे न पिच्छे कोई अपनी हिंदा
मतलूबा ख्वाहिश साद दे मुताबिक उनका इख्तिताम यानी 2011 दे मुजाहरियां दा जेड़ा आउटकम है वो 2024 दे एंड दे उत्ते सामने आंदा पे ठीक है ना कि उत्थां ठीक है। उनदा आउटकम इतने साल उकों लगदे होए टुटे अच्छा ये सारी तब्दीली गदनफर साहब कहीं भी मुल्क दे विच इक़्तिदार दी तब्दीली अननेचुरल वे एक तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होंदे या एक प्रोसेस होंदे कि इक़्तिदार दी मुंतकिली थींदी पई होंदी है ना हम्म। इवन के उन्हें मुमालिक दे विच भी जिथां डेमोक्रेसी कहनी उत्थां उन्होंने बादशाह थे या प्यू दे बाद पोतरा आवेंदे फिरा आवेंदे सऊदी अरब को गिन गिनू अरब मुमालिक बिन्ने को गिन गिनू ये सिर्फ हम्म। ये डिक्टेटरशिप सिर्फ शाम दा मसला ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਿਓ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂ ਬਣੀ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਅਰਬ ਮੁਮਾਲਿਕ ਇਵੇਂ ਦੇ ਇਵੇਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਅਸਾਂ ਕੋ जी हाँ। ਦੇਖਾਂ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਇੰਜਾਮ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ठीक है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕਨੇ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸੀ ਗਦਨਫਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ बैरूनी ताकतें दी मदद दे बगैर मुमकिन कहनी ठीक है शाम एक ठीक। अरसे कने बैरूनी ताकतें दे मुदाखलत दा शिकार है ही, ठीक है ना हम्म। हम्म। वो सिर्फ एक कि यूरोप या अमरीका वो सारे दे सारे शाम दे खिलाफ ਹਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥੀਵਣ ਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਈਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਵੱਲ ਦੂਜਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕਟੇਰੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਰਬ ਸੁੰਨੀ ਅਰਬ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੀਆ ਅਜਮ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਲ ਕੁਝ ਸ਼ੀਆ ਅਰਬ ਸ਼ੀਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਅਰਬ ਸ਼ੀਆ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ अजम शिया हाई जिंदी सरबराही ईरान करेंदा सरपरस्ती यो करेंदा ते ओ पिछले कुछ अरसे कन्नै इतना ज्यादा मसाइल दा शिकार हन थैन कि ये सारी एक चेन जेड़ी बनी खड़ी आई वो चेन त्रुटी है ठीक है ना हम्म। ਉਹਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਜ਼ਨਫਰ ਸਾਹਿਬ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖ ਗਿਨੋ ਕਿ ਜਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਤਨਾ ਮਨਾ ਗਏ ਨੇ ਕਈ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਹੁੰਦੇ ਅਮਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਬਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਜੰਗੀ ਹਫਤਾ ਮੈਕਸਿਮਮ इस्लामाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਰ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤਨੇ ਬੇਚੈਨ ਤੇ ਡਿਸਟਰਬ ਥੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿਆ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤਾਲੀਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਹਤ ਹੈਲਥ ਸਭ ਸ਼ੈ ਡਿਸਟਰਬ ਠੀਕ ਹੈ ਰਹਿ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ हम्म। ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਗਏ ਨਹੀਂ हम्म। ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਾਂ ਕੋ ਕਿਸੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਮੱਦੇ अवामी ਮੁਕਾਬਲੇ राज आ गए। अवामी राज आ गए ना ये हम्म। मंजिल मतलब ये है कि हाली मजीद खोटी दूर ना है। थी खोटी जी ना हाँ। थी ठीक है ना लोग ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਅਸਦ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਬੇਸ਼ੱਕ हम्म। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੋ ਸ਼ਖਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕੋ देखो ਦੇਖੋ ढके सी मारे सी। ਮਾਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਫਰੀडम ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹੁਣ हम्म। ਉਹ ਬਸ਼ਾਰ ਅਲ ਅਸਦ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆ ਨਾ ਔਰ ਇੱਕ हम्म। ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ हम्म। ਵੀ ਮੁਸਲਸਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟਸ ਹਨ ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਪਨ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ freedom हम्म। of freedom of बीच। movement freedom of हम्म। speech ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਰੀडम्स ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਿਤਨਾ ਡਿਸਟਰਬ ਥੀਆਂ ਕਰਨ ਅਸਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ हम्म। कुछ थोड़ी सी तब्दीली तो आपको नजर आई होती कि इमरान खान ने एक या बना दी है कमेटी बना दी है कि हुकूमत के नाल बाहर के पास दोबारा शाम वाले पास आने ਤੇ ਉਹ हम्म। ਅਸਲੇ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਦੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਵਾਕਿਆਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਾਬਹਤ ਰੱਖਦੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਬੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ जी हाँ। ਅਚਾਨਕ ਮਾਮਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਗਜ਼ਨਫਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਬਸ਼ਾਰ ਅਲ ਅਸਦ
कन्नै इक़्तिदार दा खात्मा है या हम्म, एह् इक प्री प्लान मुंतकली है इक़्तिदार दी, हम्म, ठीक है। इंदे उत्ते जेह्ड़ा रूस दे वज़ीर ख़ारजा ने जेह्ड़ी स्टेटमेंट दित्ती है ओह् काफ़ी हम्म, अहम स्टेटमेंट है। उ'न्नै आखेआ कि हम्म, बशार अल असद ने पहले इक़्तिदार छोड़न कन्नै पैह्ले जितने भी ग्रुप न उं'दे नाल उ'नें मुज़ाकरात कीते और उ'नें मुज़ाकरात दे विच तय है कि ओह् जेह्ड़ा ऐ इक़्तिदार छोड़ देसी और इक़्तिदार एक है इयो हम्म, जी इक़्तिदार दी मुंतकिली दा इक वाक़या पहले अफ़गानिस्तान इच रूनुमा थी चुके थी और चुके जी हाँ। और इन्ने दी जेह्ड़ी इक दूजे दे नाल रिज़ेम्बलेंस हम्म, है गज़नफ़र साहब के उं वेले इक़्तिदार इक इंतहा पसंद मुल्लायत दहशतगर्दी दे हामी ग्रुप ने हम्म, अफ़गानिस्तान दे विच ओह् कीते जेह्ड़े ना कोई ह्यूमन राइट्स को मन्नदे ना कोई हम्म, जमहूरियत को मन्नदे ना ख़वातीन को आज़ादी ॾियण दे हक़ दे विच आहिनि ओह् उन लोगें दे हत्थ च इक़्तिदार है, ठीक है। मज़हब जी हाँ। कार्ड खेल के जेह्ड़े मज़हब को अपने इहो करके अग्गों रख के अपने गैर इंसानी और अपने इक़दामात को जस्टिफिकेशन ॾियंदा आहिनि उन ग्रोह कन्नै अफ़गानिस्तान दे विच ओह् इक़्तिदार है हुण असां भला दूजा हिकु गिरोह जेह्ड़ा ॾेदे बैठे हैं ओह् शाम दा इक गिरोह है, ठीक है ना हम्म, जंहिं में ई वक्त इक़्तिदार है पीसफुल ट्रांसफर है अफ़गानिस्तान आली कार, ठीक है ना। ठीक है। और उम्मीद है अगर तां उत्थों दे जेह्ड़े वज़ीर आज़म है ओह् उन्होंने ने कैं नहीं हटाया और वज़ीर आज़म ने आखेआ कि भई मैं ताहर दी मुंतकली वास्ते बैठा थी और त्यार। जिवें मैं आखसो त्यार हां मैं उवें करे सां। भला उन्ने दा जेह्ड़ा वज़ीर ख़ारजा है शाम दा उंदा भी एह् आखण है कि असीं जे कोई अगर इलेक्शन थी वञे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन थी वञनि और कोई जमहूरी तरीक़ाकार आ वञे ते ओह् सब तो और इहा ही सब तो ज़्यादा फला हिंदे हक़ च होसी जेह्ड़ा शाम दे मकामी लोगों के हक च सी। मुकामी लोगें दे हक़ च इहा ॻाल्हि होसी लेकिन गदनफर साहब जिन्हें दे हत्थें च बंदूकां आहिनि जिन्हें दे हत्थें च टैंक आहिनि जिन्हें दे हत्थें च मार्टर गन्नां आहिनि या इहे आहिनि उ'नें कन्नै हथियार किवें रखवाया वेसी हम्म, हथियार तां अफ़गानिस्तान दे विच साकू नज़र आया कि अफ़गानिस्तान कोई इलेक्शन नहीं करवाया उन्होंने आखेआ असां आप इक़्तिदार च आ गए असां आप सारे मामलात उन्होंने आर्मी को मर्ज कीते अपने नाल मिलाए ने इंस्टीट्यूशनल हम्म, सिस्टम को चलाए ने लेकिन एक गाल हम्म, ज़हन च रह वञे कि हैयत दे हिसाब नाल अपने तर्ज़े मुआशरत दे हिसाब नाल एह् अफ़गानिस्तान और शाम विच बहुत फ़र्क है, ठीक है हम्म, ना। और इन्हें जो दे हालात वाक़यात दे नाल भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है पूरी दुनिया दे नाल उन्हें दे जेह्ड़े अफ़गानिस्तान दे इख्तलाफात दे बावजूद ठीक है हम्म, ना पाकिस्तान वैद ऐसा मुल्क वल बच्चा हा जिन्हें दे नाल उन्हां ने दी नोई इख्तलाफात दी नोयत विच उतार चढ़ाव आया जिन्हें दे नाल उन्हें दे हिंदे विच इक दूजे ते इल्ज़ामात दिन नौबत आई है हिक ॿिए को सबक सिखावण था ॻाल्हियूं थियनि ठीक है ना बाकी पूरे पासों उन्हें अपना मामलात को ठीक रखे पाकिस्तान दे विच जेह्ड़ा प्रॉब्लम आई गज़नफ़र साहब अफ़गानिस्तान दे नाल साਡਾ जेह्ड़ा इख्तलाफी पहलू है उंदे दो मेजर वजूहात ਹਨ हिक हम्म, उन्हें विच जेह्ड़ी वजह आई ओह् साਡੀ बीइंग स्टेट पॉलिसी तालिबानाइजेशन को फ़रोग़ ॾियण और प्राइवेट मिलिट्री को इहो मिलिटराइजेशन करण के भी लोगें दी कि भी ओह् प्राइवेट अपने तौर दे उत्ते गन्ना ट्रेनिंग हासिल करन और इहो पाण वञे ओह् रियासती पॉलिसी आई गदनफर साहब जंहिंजी जी वजह हाँ। कन्नै अफ़गानिस्तान ते पाकिस्तान ई मामले दे विच हिक ॿिए नाल इंटरलिंक्ड ने ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਐਂਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ असां अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल करणु चाहंदे हुआसीं या जहिड़े वेले इहो हूंदे साॾे हामी इहे आंदा आहिनि असां पिछली बि हुकूमत को अफ़गानिस्तान दी डिस्टेबलाइज़ कीता कि असां समझदे हुआसीं कि उहो प्रो इंडियन है
जबकि वो सिविलियन गवर्नमेंट आई, वो कोई ना कोई हम्म। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, वो कोई ना कोई जमहूरियत दी शक्ल की खड़ी आई, जिंदी एक पार्लियामेंट आई। ठीक है ना गदन फरसा है, लेकिन इंतखाबात भी असा थे यहाँ उनके तो। खिलाफ इंतखाबात, लेकिन असा उनके अगेंस्ट के को सपोर्ट किया तालिबान को, बोला असा उथा वन के चाय का कप पीवन वास्ते पहुंच गए आसे गदन फरसा। ठीक है, जी उनकी हाँ। वजह कन्नै साढ़े इशूज थे, प्रॉब्लम थे, मामलात। पाकिस्तान एक जा मुल्क आ जिंदे तालिबान दे उन्हें हुकूमत दे या थई। गदनफर साहब दूजी गाल है कि तालिबान दा ते जेह्ड़ी फलस्तीन दे विच शाम दे विच जेह्ड़ा ग्रुप इक़्तिदार दे विच है, उन्ने दे विच एक हम्म। बिया फर्क एह् है कि तालिबान पहले एक दफा इक़्तिदार च आ चुके हैं। ਉਹ ਕੁਝ हम्म। ਨਾ ਕੁਝ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਮੂਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਦੇ, ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਓਵਰਆਲ ਇਹਦਾ ਕੰਪੈरेटिव तज्जिया करूं या देखूं तो पिछली दफा दे बरअक्स उन्होंने ई दफा ज्यादा बेहतर मतलब है कि रवैये अख्तियार किए। ठीक है, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਕ ਕਹਿਣ ਬਹੁ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, हम्म। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਕहीं ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਗਲਨ पर साहब इंटरेस्ट खड़े थिया, इसराइल हम्म। खड़े थिया उथा, अमेरिका खड़े थिया उथा, सऊदी अरब खड़े थिया उथा, ईरान खड़े थिया उथा, तुर्की खड़े थिया उथा, उथा ईरान रूस खड़े थिया, और उथा कुर्द खड़े थे। ठीक है ना। ठीक है। अजकल ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਕਤਦਾਰ ਇੰਤਕਾਲ ਇਕਤਦਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਲੜਦੇ ਕਰਿਆ ਨਾ। ਕੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੇਸ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ हम्म। ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੀ, हम्म। ਕਈ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਸਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਸੀ ਉਹ ਬਿਸਮਿल्ला, ਔਰ जी ਸਪੋਰਟ हाँ। ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਫਾਦਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਖੌਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਹੈ, ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਰਦ ਹੈ, ਕੁਰਦ ਮਸਲਾ जी ਹੈ हाँ। ਖੜੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਉਹ ਲੋਕ ਗੋਲਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸਦ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਖੜੇ ਹਨ, ਬਿਸ਼ਾਰ ਅਲ ਅਸਦ ਦੇ हम्म। ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਖੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹੁਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। हम्म। जमहूरियत का मेरे को नहीं लगता कदन फर साहब के कोई डेमोक्रेटिक अगो ते टुरे, क्योंकि एक तो ये है कि पहली दफा इकतदार है जाने पे, और वो जेड़ा हम्म। बंदे दी शक्ल नजर आंदी पई है, जे को दिखेंदे बैठे जेड़ा तालिबान जेड़ा अल-कायदा बनावण दे विच भी, अल-कायदा दे हिंदे विच भी काफी ज्यादा जे जरकावी दा नायब आ अहमद जुरानी। जुरानी जी उनदा हाँ। तुसां देख गिनो सही, उनदा शक्लो शबाहत, उनदे मामलात, उन्होंने पहले पहले किस किस्म दे ये कीते न। ਇਹ ਤਾਂ ਗਦਨਫਰ ਸਾਹਿਬ ਬਸ਼ਾਰ ਉਲ ਅਸਦ को क्रेडिट वेंदे कि वो कोई वड्डे खून खराबे कीते पर है, हम्म। जिम्मेशा लोगों को अपने मुल्क दे लोगों दी उन्हें जाना जायन नहीं थी मान दिता, बचा गए कहीं ना कहीं। जिमें साकू तो आपको याद हम्म। होंदी जद वेले अफगानिस्तान वाला इहो थींदा पिया ते वो गनी जड़ा हा, अशरफ उन्हें गनी। उन्हें छोड़ दिता। हम्म। ठीक है, बोला कि भी आओ यार तुसा, मैं नहीं यो करेंदा, यानी तुसा अपने लोगें अपने हिन्ने दी खातिर, बोला शायद गजनफर साहब ਇਹ ਹੁਣ ਕਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦਲਦਲ ਚ ਨਾ ਫਸ ਵञनि ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ हम्म। ਵੱਡਾ ਉਵੇਂ ਵੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਔਰ हम्म। ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸ਼ਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਨ जी हाँ। निकले। लेकिन गजनफर साहब उत्थै दो दो या त्रै फैक्टर, एक फैक्टर तो सारे कन्नै अहम है कि लड़ाई हम्म। लड़ते कौन खड़े ने, स्टेक होल्डर कौन है। ठीक है, दूजी गल ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डेमोक्रेसी, जमहूरियत, हम्म। अमन, बाहमी एहतराम, हम्म। पीसफुल शाम, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ हम्म। कौन है।
जहाँ तक गज़नफ़र साहब ईरान दी ॻाल्हि है, ईरान दे बारे च उन्होंने ने आखे साडी एम्बेसी दे उत्ते हमला थी गया। इवें इटली भी ने आखे कि साडी एम्बेसी दे उत्ते उनके हमला हमला थी था। है। अच्छा शाम दी एम्बेसी जेह्ड़ी है ईरान दी जेह्ड़ी एम्बेसी है उंदे बरअक्स इटली आह्ली एम्बेसी दे उत्ते हमला थी होण दा मैं थोड़े जेह् वजूहात मैं देखना चाहता कि उन्हें क्या वजूहात हैं क्या फिर उत्थां क्यों या हम्म। उ'ऐ अमूमी बलू कट्ठे थिया वञनि लोग निकली वञनि जथियुनि जी शक्ल है जिद्धे पे वञो उॾे पे वञो लुट मार करो ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ अमूमी जय मिजाज जय। ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਗਿਆ लेकिन जहाँ तक ईरान की गाल है ना गजन करते हैं ईरान का बारे च पता चले कि ईरान अपने सफारतकारें को पहले ही उतो कट गया कर ठीक है चुका। कर चुका और ई जी। गाल दी रूसी जेड़े वजीर खारजा दी गुफ्तगू है कि भी जेड़ा ट्रांसफर ऑफ पावर है इकतदार दी जेड़ी मतलब है मुंतकली या बशार अल असद दा जेड़ा इकतदार छोड़न है वो एक प्रोसेस दे तहत है ठीक है कई हम्म। नेगोशिएशंस दे तहत है ठीक है तो इनका मतलब ये है कि ईरान भी ये सारी सिचुएशन कने आगाह है कि भाई ये छोड़ के वेंदे पैन और असां अपने बंदियां को इथों कट के आने थे और उन्होंने कटे लेकिन उनकी एक मजहबी अहमियत को जरूर तुसा नजरअंदाज ना करे कि शाम दे विच बहुत सारे मकामात मुकद्दसा हैं जिंदे नाल जय। शिया कम्युनिटी दा जेड़ा दिली ताल्लुक उवें तो सारे मुसलमान उन वास्ते वो काबिल एहतराम शख्सियात हैं और ये हैं लेकिन शिया कम्युनिटी जेड़ी है उनका हम्म। बहुत बड़ा दिली लगाव ते इयो है वो जेह्ड़ी फैमिली छोड़ के किरदार गई है बशार अल असद अली ओ शियान आप उन्हें दा हैगा जय। अपना अकीदत दा ताल्लुक है लेकिन एक इदा दूआ पहलू है वो जेह्ड़ा सऊदी अरब दे नाल भी जुड़िया खड़ा है उत्थै मजहबी ताल्लुक अपनी जगह दे उत्ते वो एक बड़ा हम्म। सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन भी है हज है या उमरा है ठीक है ना सी सऊदियों वास्ते उत्थों कने अच्छा खासा रेवेन्यू इकट्ठा थींदे उत्थों कने वो हम्म। पैसे कट्ठे जेह्ड़े लोग इत्थों कने वेंदे न उत्थै वञ के खर्च करे पैसे ॾींदे न हुकूमत को फीसें दी हम्म। मात्तम पैसे ॾींदे सारे इवें ही इत्थै भी लोग अच्छा हज हज कने ज्यादा लोग वेंदे न ठीक है हम्म। ना हज जेह्ड़े हज दे कुछ मखसूस अयाम है बाकी तो सारे ॾींहं सारा साल बहुत थोड़े लोग उम्रे वास्ते निकलदे न ना लेकिन ज़वारी वास्ते शिया वास्ते इयां समझो वो हज है ज़वारी और वो हम्म। बार-बार वेंदे न बार-बार इन्नी जगहें दे उत्ते वेंदे न लिहाजा इंदे नाल गज़न फरदा है एक ऐसी जेह्ड़ी कंसर्न या जग उंदे नाल तशवीश दी लैर पूरी दुनिया दे शिया कम्युनिटी शिया दोस्तें दे इंदे विच पैदा थई है कि इना अग्गों क्या थी सी ठीक है पता चलिया हम्म। कि बहुत उन्होंने ये आख्या कि असां कहीं को बगैर मस मज़हबी बुनियादें दे उत्ते मसलकी बुनियादें दे उत्ते असां कहीं को हमला ना कीता वञे जेह्ड़ा हथियार नहीं ओकरे नाल ना कीता वञे जय लेकिन जय। जब जेह्ड़ा शाम है उत्थां शिया ई वक्त वल्नरेबल पोजीशन च आ चुके हैं और पता चलिया कि बहुत सारे शिया जेह्ड़े हैं वो बीबी ज़ैनब दे दरबार दे विच इहो जेह्ड़ा है उत्थां वञ के पनाह गुज़ी नागुजीन थी गए। ठीक है एक यह है कि लोग को देखो सी जेल्लै हथियार आम आदमी फौजियां दे हत्थ च होंदे तां ओह् कहीं ना कहीं इंदे विच होंदे न और एक आम ज़ाब्ते च आदमी हुंदे। हाँ, एक कई ज़ाब्ते विच कई इंदे विच होंदे न लेकिन जेल्लै वेल्ले हथियार बंदूकां आम आदमी अग्गों पकड़ा दित्तियां गैन और उंदे भी मुख्तलिफ गिरोह हैं ठीक है ना हम्म। उन गिरोहें दे विच इ'यै थी ठीक है भला ॼण इक़्तिदार दा फार्मूला तय नहीं थिया कि कौन क्या करे सी हम्म। क्या ना करे सी दमिश्क के जेड़े पहुंचे बैठे न, कल क्या पता इन्हें कड्ढण वास्ते कोई भी आया खड़ा होवे कि कड्ढू इन्हें को जय। ठीक है ना सी जय। तो ये सारी चीज़ां दी सूरत हाल ਇਹ ਜੀ ਬਣਨੀ है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਇਰਦ हम्म। ਗਿਰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਮਾਲਿਕ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਇਹ हम्म। ਸਾਰੇ ਮੁਤਾਹਰਬ ਜਿਹੜੇ फरीक हैं ये सारे बावें इकट्ठे थी वैं और ये कोई पीसफुल ऐसा कोई हल शाम दा कड्ढन ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਾ ਥੀਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ भी महफूज रहे अच्छा। बहरहाल ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰ ਹਨ बशार अल असद उन्हें दा तैयारा जड़ा है कुछ घंटे पहले वो जो रवाना थिया तो इन दौरान ही
ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੀ ਆਦਨ ਕਿ ਉਹ ਯੂ ਟਰਨ ਗਿੱਦੇ ਤੇ ਵੱਲ ਰਡਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀ 24.com ਹੈ ਉੱਥਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੀ ਗਾਇਬ थी गया। उन्हें आखना है कि ਜਿਹੜੇ हुम्स ਦੇ इर्द गिर्द त्यारा मौजूद आ उत्थां कुछ बेसिस भी हैं अमरीकी बेसिस भी हैं ते मगरबी ममालिक दे बेसिस भी उत्थां मौजूद हैं उत्थां शायद या GPS सिस्टम की वजह तो या कोई बिया निज़ाम होवे उदी वजह कन्नै शायद डेटा एडो दिया होवे त्यारा ढावण दी इतलात भी कहनियां लेकिन ये भी खबर दसें दी BBC ने भी जो कुछ लिखे रॉयटर्स ने भी जो कुछ खबर दी है हुण तक कि हाली उंदे बशार उल असद का पता कै नहीं वो कित्था है आया वो शाम चो निकलण चो कामयाब थी चुके वो UAE च वो ईरान च वो कित्था है ये ज़ाहिर खबर जू जू आसन पता लगसी बाकी ਜਿਹੜੀ ਹਯਤ ਤਹਿਰੀਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਖਿਆ ਵੈਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਰਾਹ ਹੈ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਯਤ ਤਹਿਰੀਰ ਅਲ ਸ਼ਾਮ ਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਇਹ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਮਗਰਬੀ ਮਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਇਹ ਕਲਦਮ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਪੋਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ई तंजीम ने अगर उत्थां हुकूमत कायम करनी है तर्ज़ हुकूमत हो सी वो हुकूमत किथां अक़वाम मुतहदा च आया या हुकूमत तस्लीम थी सी ना थी सी देखने वाली ॻाल्हियूं ते ये तुसां जिहड़ी ये डायमेंशन है कि हयत तहरीर शाम हुकूमत बना गिंदी है तां हुकूमत दुनिया जिहड़े हमसाया मुल्क इन शाम दे वल मगरबी दुनिया इडो रूस ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਖੜੇ ਹਨ ਬਸ਼ਾਰ ਉਲ ਅਸਦ ਦੀ ਇਹ ਤਸਲੀਮ करे सन गजन पर ते पहली गाल तो ये कि क्या शाम दे सारे लोग ही को तस्लीम करे सन जी ये भी क्वेश्चन है बाहरों वाले फैक्टर तो बाद च आसन ना जिन्ने दे कन्ने गन्ना है जिन्ने दे ग्रुप वो ग्रुप आपस से पहले कोई फैसले ते पहुंचदे उन्हें वहीं कब्जा तो कर गिते ने कर्फ्यू भी शहर दे विच ला दिते ने जहां तक बशार अल असद दे त्यारे वाली गाल है गजन पर त्यारा जंग दे जेह्ड़ी जंग वाली सिचुएशन होंदी है ना ठीक है ना उंदे विच कोई यकीनी गाल तां होंदी कै नहीं ठीक है हुण जिवें नेगोशिएशन थीआं पियां हन रूस दे जिवें वज़ीरे खारजा आता खड़े अगर वो नेगोशिएशंस तैं बशार अल असद एक सोच के इक़्तिदार को छोड़े और दिमश्क तो छोड़ने का फैसला कीते थे जितना भी वञण का फैसला उन्हें कीते जितना भी वेंदे ठीक है ना ते उन्हें ई पॉसिबिलिटी को तो मद्देनजर रखिया हो कि मैं जेल्ले दिमश्क छुड़ेंदा पिया होसां या शाम छुड़ेंदा पिया ते मैं को मेरे त्यारे को मेरे सही सलामत निकलण दे क्या तरीकाकार हो सी क्या मामला हो सी लेकिन असां एक मादी दे जेड़े चीजें दे विच देख चुके हैं अमेरिकन्स दा एक भयानक रूप ठीक है ना वो जितना भी शक्ल जितना भी नजर आया ना से वो सबको लीबिया दे मुअम्मर कज़ाफी दा मारिया वञण जहिड़े तरीके नाल को मार दिता गया सद्दाम हुसैन को पकड़ के फांसी दे दी गई चीजें दे दिता गया ये जे वो एक जेड़े एंटी अमेरिकन एलिमेंट है जेको अमेरिका ने ई खिते दे विच अपनी अपनी स्ट्रेंथ को अपनी इन्वॉल्वमेंट को वधावण दा जेड़ा जरिया बने ई खिते दे विच ठीक है ना सी क्या होंदा मतलब ये कि ईरान कन्नै खतरा है सऊदी अरब को चलो सी कतर च गिनो तुसां अड्डे इत्थां गिनो उत्थां गिनो यानी कि वो कहीं ना कहीं हद तक ये वो ताकतां हन जेड़ा अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट को जस्टिफिकेशन देना हन कि वो आके अपने ही दे विच इहो करे ठीक है ना सो उन्हें को वाल उन्हें दे ही दे विच इहो करण वास्ते जो उसामा बिन लादेन को पिछो लगे रह गए और आखिर वो चाह के मार सके ने ठीक है ना सो बशार असद भी एक ऐसी शख्सियत है एक ऐसा बंदा है जेको जेड़ा अमेरिकन दे नजदीक बहुत बड़ा मुजरिम है ठीक है ना यकीनी तौर पे अपने लोगों का भी मुजरिम है ठीक है जेड़ा उन्हें जुल्म तशद्दुद कोई भी डिक्टेटर को जस्टिफिकेशन तो नहीं की बन सकती कि नहीं कि ये डिक्टेटर ने यो कीते या ओ कीते वो एक जालिम
इंसान है ही। अच्छा, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਤਦਾਰ को तूल ਲਿਆਉਣ ਅੱਜ भी इकतदार को तूल ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ मोहम्मद बिन सलमान भी लोगों को मारण कने गुरेज ना करे सी। ਉਹ हम्म UAE वाला ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਹੈ मोहम्मद बिन जायद। जायद ਉਹ ਵੀ ਇਜਤਨਾਬ ਨਾ ਕਰੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ। हम्म ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਿਨੋ ਜਿਹੜਾ UAE ਕਤਰ ਨੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਪਣਾਇਆ ਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ हम्म ਨਾ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। हम्म ਤੇ ਉਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਨਾਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ अच्छा रहन सहन देवें, अच्छे या तर्ज जिंदगी देवें, सहूलियात देवन बिल्कुल उन्हें को याद देवें। खुश वो रखन। उनकने ज्यादा बेहतर शाम दे विच आ, उनकने ज्यादा बेहतर शाम दे विच आ, उनकने कई गुना ज्यादा बेहतर शाम दे विच आ। हम्म लेकिन चूंकि शाम दा मसला हा ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਉਹ हम्म ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਅਮਰੀਕਨ रजामंदी दी डिक्टेटरशिप ना आई ना, ये तो अमेरिकन हम्म रजामंदी दी डिक्टेटरशिप या है। सो असां वाल आने हैं कि भाई क्या ये हाल ही असां को मजीद भी मेरा ख्याल है कुछ दी लग हुए सन कि बाहर हम्म कैबिन दे हवाले नाल उन्होंने मुलाकातां या गाली बातें शुरू कर दित्तियां हो सन, लोग डरे पे हो सन, सहमे पे वाल ऐसा ऐसा हम्म पता लग सके भई इंदे उत्ते नव्या क्या पेशरफ थींदी है और क्या ये ॿाहिरि के कोई अहिड़ा हल कढण च कामयाब थी वेंदा आहिनि मुतहरिब ग्रोह ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿन्हें कन्नै असला है, जिन्हें वास्ते हम्म लोगों को मारण मामूली गाल है, वो मुतहरिब ग्रोह और जेड़ा सब ने लीडिंग किरदार सामने आना पे वो ज्यादा इंतहा पसंद और ज्यादा इंसान खुश नजर आना पे। ਉਹ भला लोगों ਦੇ ਉੱਤੇ किस किस्म ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੁਬਤਲਾ थी वञनि, ਇਹ वॾा हीअं वाली ॻाल्हि है, ॾेखण वाली ॻाल्हि हुसी। और ये एक ॿी चीज़ भी देखिनो हमेशा अरब अरबे ने एक्सपोर्ट किते जिहाद को, ठीक है ना जी, जी हाँ। किते अफगानिस्तान विच, ठीक है ना जी, साढ़े पासों या उन्होंने जिहाद दा जेड़ा इहो रुख अपना सिद्धे कीते न, अपने हत्थ सिद्धे कीते न, ਉਹ ਸੈਕਟੇਰੀਅਨ ਗਿਰਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। हम्म ਸ਼ੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਾਦ, ਜਿਵੇਂ ਯਮਨ ਹੈ, ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਹਨ ਤਾਂ ਅਰਬ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ੀਆ हम्म ਅਰਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਖਣ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਖਣ। सो हम्म वो सेक्टेरियन है यह है। शाम को देखना पोसी, शाम जेड़ा है ना, तो शाम हम्म शाम सुन्नियों लकीदा अरब मुल्क है हम्म अक्सरियत उनकी। क्या इत्थां आके अरब मुमालिक ई ॻाल्हि ते इत्तफ़ाक़ कर वैसन कि इत्थां कोई मज़हबी हुकूमत क़ाइम थी वञे, इंतहा पसंद हुकूमत दा क़याम अमल जा वञे? ये हिकु सुवाल है कि क्या हम्म वल इंपैक्ट इटसेल्फ एक इंतहा पसंद हुकूमत ई तरीके दे नाल गदनफर साहब शाम दे विच अगर हुकूमत बना वेंदी है गन दे ज़ोर दे विच, तां क्या हम्म ओ ॿिन मुमालिक वास्ते खतरे दी घंटी नहीं कि उन्ने दे शहरी, उन्ने दे हम्म लोग उनकने इंस्पायरेशन गिनन या उत्थों पहुंचण शुरू कर देवन? ज़ाहिर है वल एक एक ये भी थी हुई थी ना सही कि दुबई है या हुन सऊदी अरब को देखो तो मोहम्मद बिन सलमान दे बाद दा जेड़ा सऊदी अरब है वो बहुत एडवांस है, जदीद है, उनका जदीद दुनिया दे रंग जेड़ा है वो ॾींहों ॾींहुं वधदे पैन। दुबई ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਸਮਝੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾ ਖੜੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨ ਖਿਆਲੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਏ, ਇੱਕ ਜਿੱਦਤ ਆਂਦੀ ਪਈ ਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਸਲਾਮ ਪਸੰਦ ਕੁੱਤਾ ਅਗਰ ਉੱਥਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਤਾਂ ਜ਼ਾहिर है ਜਿਹੜੇ ॿे अरब मुमालिक आहिनि उन ਦਾ असर ਤਾਂ ਉੱਪੋ ਸੀ। तुसां उन इस्लाम पसंद कुव्वतें को देखो जा जेड़े बगैर लड़ाई झगड़े दे इलेक्शन हम्म जीत के आए ਹਨ मिस्र दे विच, जय ठीक है? उन्हें उन्हां हम्म बाहवां दिता गया होता, ठीक है। जय अच्छा वल गदनफर साहब हिन त जिहादी एलिमेंट ना हाली भले जिडो करन था, भावें जय अमेरिका कने को करेंदे करन, भावें जेड़ा कुछ करेंदे करन, भावें तुर्की उन्हें को करेंदा करे, भावें एक्स वाई ज़ेड कर, हम्म कौन भी उन्हें को करेंदा करे। कल हम्म वो उठे बह गए जिवें असद कने भी ज्यादा सख्त मौकफ दे नाल इसराइल दे खिलाफ तय करे होण। हम्म
चीजें दा तां कोई इ'यो पता गै नहीं कि जेल्लै तुसां करना ही जिहाद है, तुसां जय अपने हा। जिहाद दे डिमेंशंस आप तय करे सो। तुसां किड्डे वञ हम्म, के करने वे, केड़े ग्राउंड ते करने वे, क्या इहो करने वे। जिहाद करन या वार करन या लड़न और इक़्तिदार दे उत्ते आके हुकूमत करन विच वड्डा फर्क है, ठीक है जय ना? हा। ਹੁਣ ਇन्ने को क्या इन्होंने इन्ने बंदे ने जिवें तालिबान ने अपने मौलवियों के जरिए या उन्होंने इन्हों के जरिए बह के हुकूमत करें दे बैठे न। तालिबान उलमा के जरिए या इन्हें क्या इन्ने था इन्ने लोग इन्ने कमांडर्स के जरिए जिवें हुकूमत करें दे बैठे क्या इतना भी कमांडर्स को आंदा वे सी ये थोड़ा जिहा एक बड़ी देखण वाली गाल है। गाल है कि जिहदे नाल अगों ते मशरक़ वुस्ता दा मिडल ईस्ट दा ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ थे ना एक स्टेबल हुकूमत को ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਇਹਨੇ यो कीते ने ਇਹ जे वक्त उत्ते स्टेबल हुकूमत यानी कि एक चलती हुई हुकूमत स्टेबल ना भी आखूं एक हालत जंग ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਪਏ ਇੱਕ ਐਸੀ हम्म, हुकूमत ਇਹ ਜਿਹ वक्त ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅਰਬ ਮਮਾਲਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਿਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਬੰਦੇ और हम्म, उत्ता एक इंतहा पसंद गिरोह को बाहुआं और वल ये है कि शाम कोई अनपढ़ खिता कह नहीं ठीक है हम्म, ना अफगानिस्तान है तो ये चीज़ां वो तो जय हा। मॉडर्न है शाम कोई पहाड़ियां तो नहीं ना सही उत्थे बिजली ना हम्म, होवे उत्थे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ना होवे उत्थे कम्युनिकेशंस ना होवन ठीक है ते ना कबायली शाम निज़ाम होवे जा जाते। वजह ज्यादा कब शाम दा इंटायरली एक डिफरेंट मुल्क है और उत्थां दा डिमेंशंस भी हुन उत्थां सारे वास्ते वड्डे चैलेंजेस हम्म, न जिन्हां ने गड़बड़ करवाई भी है ना वो भी हम्म। मुश्किल च आ गए सन कि असां उ'नें जिनको बोतल च किवें बंद करो ठीक है शिकान जी, ये ज़ाहिर है ऑन गोइंग किस्सा है। ये रोज़ शाम का किस्सा करे सूं अगर सूरत हाल जिन्ने वेंदी है। ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂਦਾਰ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਤਾਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਲਾ ਬਿਆਨੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 26ਵੀਂ ਆਇਨੀ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸੱਵਦਾ 26ਵੀਂ ਆਇਨੀ ਤਰਮੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਕੂਮਤ 9 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੁਸੱਵਦਾ ਆ ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਂ ਹਨ ਉਹ 56 ਹਨ। ਅਸਾਂ गाल मुहार करके मुज़ाकरात करके 34 शिकां ख़त्म करा दित्तियां ਹਨ। सिर्फ 22 शिकां वल बचाया ਹਨ। वल उन्होंने ये आखिया कि अगर ये मुसवदा पास थी वेंदा ना मुल्क बचे हा खुदा ना खास्ता ते ना ही ये इदारे बचे हा। उन्होंने वो विफाकी हुकूमत ते भी तनकीद की थी, आसिफ जरदारी ते भी तनकीद की थी ते उन्होंने ये आखिए कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁਦਾਰਿਸ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲੇ ਮੁਦਾਰਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਕੋ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਲਕਿ ਇਹ ਤੱਕ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਲਕ ਥਾ हिकिड़ो गोली दे या धमकी दे या डरावण धमकावण दे तो ॼण गोलियां मोक वैसनि सारे सीने न मुकसनि। साकू डराओ ना, साकू इंजे पैगाम ना ॾियो धमकीअ में। असां डरण वाले काहे नहीं। असां त ज़ाहिर जिहाद को असां अपने वास्ते जिहाद ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ जन्नत ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਦਾ ਇਹ ਆਖਣਾ ਜੋ ਇਹ ਮੌਲਾਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਲਾ ਬਿਆਨੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਬਿਠਾ। गजनफर साहब मेरा ख्याल है कि मौलाना ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹੂੰ 26ਵੀਂ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕਾ ਆ ਹੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੈਸ਼ਨਲ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਾ ਆ ਸਕਿਆ ਹੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਹੂੰ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦੇ हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी और कुछ ऐसी चीज़ें जिन के उन्होंने मंजूर कराने की कोशिश की थी जो ऑब्जेक्शन है भला हुकूमत कई सूरत है उनको करना चाहती है ठीक है ਹੂੰ ਹੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हुकूमत ने पिछे आख्या कि यार ये बंदा था काबू ही नहीं देना पिया ये सारे कई मामले च नहीं चलो इसको इस्तेमाल किया वने मेरा ठीक ख्याल है। है कि हुकूमत ने इसको इस्तेमाल किया मौलाना ठीक है इस्तेमाल थी चुके हैं। मौलाना इस्तेमाल थी चुकी है हुन इस्तेमाल थी कि पै थी ठीक है हूँ ਉਹ हूँ ਕਹਿੰਦੇ मैं कितना हाँ ਉਹ ਕਿੱਥੇ हूँ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਨ ਥੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਹ हूँ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕਹੇ ਨਹੀਂ
कि हम्म मौलाना कहदी या होती कि भी मौलाना लश्कर कशी करने इस्लामाबाद ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕਦੇ क्या मौलाना ठीक है ना हम्म ਜਾਂ हम्म ਮੌਲਾਨਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਈ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰ ਹੈ ਕਿ मौलाना अपनी जमात की क्यादत अपने पुत्र को सौंपना चाहते हैं ठीक है हम्म और वो क्या मौलाना ऐसा चाहती कि जेड़े वो अपनी जमात की क्यादत अपने पुत्र को सौंपना खड़ा हुए तो वो बहुत मुश्किल हालात होंगे उनके बेटे हम्म वास्ते उनके औलाद वास्ते पार्टी जो इन्हें इनके वास्ते करने वास्ते जया तो मैं फ्रस्ट्रेशन लगती पई है ये मौलाना दी कि मौलाना को लगता है कि मेरे नाल धोखा थी है और मौलाना हम्म उत्थां गल सुनन ना चाहता हुन मेरे को एक गल दसाओ 36 57 54 जितने भी हम्म ये मौलाना उन्हें नाल कोई नेकी की करे जया जया डिठा वञे तो ज़ाहिर है उन पूरी पूरा जड़ा पूरा दा पूरा प्लान आ मौलाना दे चौपट कर मौलाना फजल जया रहमान ठीक है ना हम्म और जेड़ा बंदा ई कीती करे कि क्या ओ उको आखन के सी कमाल है तुहाडी बादशाह लेकिन वल भी सियासी जेड़े जमातां होंदियां रहंदे पतन पर साहब वो कहीं बंद गलिए च अपने आप को कहने क्यों रहंदा मौलाना अपने आप को बंद गलिए च कहना कहना जिवें इमरान खान अपने आप को बंद गलिए बंद जेह्ड़ी करी गल्ल जया तुस असां आखदे असें लॉन्ग मार्च शुरू करन कन्नै इतिहास शुरू करन कन्नै पैह्ले यार हमेशा गल्ल करदे रैह्गे कि यार सियासी लोग आपस च गुफ्तशनीद करदे रौंह्दे न आपस च बैठ के गल्ल करदे रौंह्दे न ठीक है ना हम्म इमरान खान अज्ज जेल्लै सब कुछ अपनी सारी जेह्ड़ी स्ट्रेंथ आई अपनी हम्म सारी जेह्ड़ी इमेज आई उको तबाह करके हुन अदा करदे यकन अगर ये हुण कम्म कमेटी बना दी म हुण खान साहब ने कमेटी बना दी ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਤਨੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਇੰਨੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ जया ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਬਾਂਧਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕहीं तरीके स्पेस ਨਾਲ ॾींदा आहिनि बिल्कुलु गुफ्तगू करन कहीं गाल करन कहीं सिलसिले को अगो ते टोड़न बाकी ये है कि गदनफर साहब मौलाना ई वक्त जेडी पोजीशन च खड़े थी हाल ही वो सूटेबल मामला हालात कह नहीं मौलाना दे हक च कोई वड्डी मूव दा यो करे मौलाना हाँ पाकिस्तान दे विच हालात तब्दील थी कितनी देर लगती है दूजे दिन हाँ सवेरे उठो पता ही लॻा सूरत हाल ही भी थी पई होंदी है ठीक है और हम्म इन्ने सारे हालात दे विच पाकिस्तान दे सारे हालात दे विच सब तो हम्म वड्डा मसला फाइनेंशियल है माली हम्म मामला इकोनॉमिक इशू है हम्म वो थोड़े ਜਿਹੇ डिस्टर्ब थी मैं तो छोटी जी भी पॉलिटिकल मूव जड़ी है वो सारा सारा सिस्टम को लपेटण दी या रखेंदी होंदी है कि इथों कने गाल सख़्तु को जया करके ही कहीं तक पहुंच सकते हैं लेकिन स्टिल ये हाली तक सामने नहीं आया गदन पर तैब ना मौलाना फजल रहमान ने इंदा इंकशाफ किते ना पीपल्स पार्टी की तरफों है ना हुकूमत की तरफों है कि मौलाना जो आते है कि साडे नाल जेड़ा तुसां जेड़ा यो पास कीता हवे हम्म मतलब नया वाला इहो ठीक है ना सी हम्म ते असां दे ते हुकूमत दस्तखत थी होना चाहिए या इहो थी होना सदर कने गया पे या जंहिं कने गया पे उंदो ते हुकूमती मौक़िफ़ क्या है हुकूमती मौक़िफ़ सही अॼु कौमी असैंबली दा इजलास सर कीता ਗਿਆ 10 ਦਸੰਬਰ को या मेरा ख्याल है कि ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਥਈ ई ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਹੋਸਨ ਤਾਂ या ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬਲਾ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ थी सी वला पे बला कल ये न थी वाला कदन फरते जया वाल वाल कुछ भी भेजती थी पर मौला फजल रहमान को 1953 विच जिन्ने 34 32 कढवाया सी पॉइंट कुछ बे पॉइंट भी मंजूर करवाने पौधे मौलाना फजल रहमान को ठीक है बहरहाल ना कोई ना कोई ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ खिचड़ी को चंगी पकदी पियो दी आखिर जेड़ा सियासी अमल थी सियासी अमल दा अच्छा नतीजा निकलदा है जय 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 नहीं नहीं ये कानून साज़ी ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਸਮਝੋ ਆਈ ਖੜੀ ਹੈ ਪੀਕਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ मीडिया ਤੇ ਜਿਹੜਾ प्रोपेगेंडा थींदा पिया कोई फेक न्यूज़ है परेशान की खड़ी है हुकूमत को इन्होंने पता नहीं कितना परेशान की खड़ी है बहरहाल ये नहीं सारा ॻाल्हि इहे आहिनि निजी तौर ते कि परेशानी वाली बात ता होंदी है गदन पर है कोई खामखा या चलो खामखा भी कोई तोरे खिलाफ करे गड़ा तो तुसां इतना जय ह्यूमन जय राइट्स को वायलेट जय करन बैठे रहे जय तुसां जय जय जय
राइट टू मूवमेंट को वैलेट करने बैठे हुए सामने भी करने बैठे हुए कदन पर एक चीज देख गिनो के लोग भी मुनज़्ज़म थैन इन सोशल मीडिया दे इहदे विच हुकूमतें दे खिलाफ सब बंदे आंद के ताई है ना सो हम्म ये सारी सूरत हाल कंप्लेक्स सिर्फ मौलाना फजल रहमान वास्ते कह नहीं हालात ਕੰਪਲੈਕਸ हम्म ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਨ ਫੌਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ हम्म ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ जा ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਔਰ जा ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਚਲਾਵਣ ਗਦਨ ਪਰ ਸਾਹਿਬ हम्म ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਅਸਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ हम्म ਇਹ ਆਖੂ ਕਿ ਭਈ ਚूंकि ਉਹ इमरान खान गैर सियासी आदमी है लिहाजा हम्म उनकी हर गल भी गैर सियासी है ਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀ हम्म ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਖੜੀ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੀਏ ਪਾਣੀ को तो पुल्ले ने तलवाना चाहिए ठीक है जा ਇਹ नहीं ਸਾਰੇ खान साहब के ने पहले भी खान साहब ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਜਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 2012 ਚ ਆਇਆ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ 1997 ਚ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਬਣਾਈ 97 98 ਚ ਬਣਾਈ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਇਨ ਨੂੰ ਤਫਵੀਜ਼ ਕਰੇਂਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਥੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਐਸ ਸਿਆਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮਾਤਾਂ ਖਾਨ ਹਨ ਉਹ ਕੌਕਬ ਵੀ ਖਾਨ ਕਰੇਗਾ ਖੜਾ ਹਨ ਔਰ ਜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਹਾ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਆਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਆਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਾਂ ਉਹ ਆਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਆਪਣੇ ਹੂੰ ਇਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦਨ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਕੂਵਤ ਨੇ ਯੈਸ ਇਹ ਅੱਛੀ ਮੂਵ ਹੈ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਹੂੰ ਲੋਕ ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਕरेंगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੂੰ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਹ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਹੂੰ ਨਾ ਉਹ ਅਗਵਾ ਸਨ ਕੋਈ ਯਥੀ ਸੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ को हर हाल ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਹੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਕੈਫ ਕਦਨ ਪਰ ਹੈ इमरान खान ਦਾ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਆਈ ਨਾ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋ ਨਾ ਪਸੰਦੀਦਗੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਨੇ ਨਾ ਹੂੰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਦਾ ਮਹਿਵਰ ਤੇ ਮਰਕਜ਼ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਹੂੰ जमहूरियत ਦੇ मामलात को जो तो उसका मतलब है हर जहाँ होते हैं जर्नल को कहने के पोजीशन ले रहे वो भी जितना इतना हूँ इन मामला एकदम बाहरों ही नहीं निकल सकते डेफिनेटली वो इतने अंदर दाखिल था करना ठीक है ना हूँ ਉਹ ਵਧੂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਦਾ ਉੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਹੁਣ हाँ ਖੈਮੇ वो ਕਨੇ पहले मुंह पिलाया वल पिठाया ਵਾਲੋ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੁਣ जा ਬਾਹਰ ਕਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਥਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਗਗਨ ਪਰ ਇਹਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਸਭ ਉਹਨੇ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥਾਂ ਬਣ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਰੁਕ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦਾ ਕਰਾ ਨਾ ਪੀਕਾ ਐਕਟ ਤਾਂ हम्म, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਇਹਦਾ जा ਰਿਆਸਤ जा ਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣੇਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪੀਕਾ ਐਕਟ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਲੇਪਾ ਪੂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਰਕੀ ਪਾਊਡਰ ਬੀਆ ਲਾਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਲੈ ਸਨ ਜੀ ਚਲੋ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਵਲਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਸਰੈਕੀ ਵਸੇਬ ਦੀ ਕੋਈ ਆਖਰ ਤੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਵੱਲ ਪਿਛੇ ਸਾਂ ਬੈਠਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਗਗਨ ਫਿਰ ਠੱਡ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਰਾਇਕੀ ਵਸੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੀ ਠੱਡ ਆ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਜਾ ਵੇਵ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਗਈ ਹੈ ਵਾਦਨ ਕਿ ਇੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਵੇਵ ਇੱਕ ठीक है ना जा जा बादल ये हो एक यू भी आ चुकी साइकिल भी आ चुकी है बारिशें ਜਾ कहने ਜਾ के ਕੋਈ ਕੋਇਟਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਠੱਡਿਆਂ ਉਹਦਾ ਹਵਾ जी ਦੇਣ जी ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ जी ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਕਤ ਠੰਡ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਦਨ ਫਿਰ ਉਹ ਠੰਡ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਾਲੀ ਆਪਣਾ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਗੁੱਲੇ ਦੇ ਵਧੇ ਜੈਕਟਾਂ ਗੁੱਲੇ ਦੇ ਹੂੰ ਵਧੇ ਜੈਕਟਾਂ ਗੁੱਲੇ ਦੇ ਵਧੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦੇ ਕਨੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਕਦਨ ਫਿਰ ਸ਼ਦੀਦ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਥੀ वेंदे असां जहिड़े इलाइक़े जे लोग इसे असां ਜਾ सर्दियां बर्दाश्त नहीं से कर सकते ठीक है ना लिहाजा ज़ाहिर उनके बचण वास्ते अपने आप को
सर्दी कन्नै बचावें हम्म हर बंदा, ठीक है। दूजा एक दिन पड़ता है कि अपना वाटर इनटेक बेहतर करे, पानी पीवे। पानी ना पी सर्दियों च पानी उवें भी घट्ट पींदे ਵੱਲ हम्म ਜਦੋਂ ਸ਼ਦੀਦ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हम्म ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਵਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਮਸਲਾ ਥींदे। लिहाज़ा पानी भी पीवन, अपने आप को गर्म रखो, बगैर ज़रूरी तौर ते ठंडे पासे ना वञो, ठंडे इन कन्नै बचे, हर बंदा अपने जानो माल दी हिफाजत करे। बड़ी मेहरबानी खान जी। ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਘਿਣ ਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਹੀ ਗਏ हैं, इस्लामाबाद ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਵੀ ਥੈਨ ਤੇ ਮਾਰਕੇ ਕਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਗਿੰਦੇ ਪਏ। ਦੋਸਤੋ ਆਖਰ ਤੇ ਵੇਂਦੇ ਵੇਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਵਲੌਗ ਹੈ, बैठक है, तुसां को शेयर करो। तुसां सारी बैठक को बेहतर करने वास्ते राय दियो, तजवीज़ दियो, सलाह दियो। अगर तुआरे कोल कोई टॉपिक है, कोई मसला है, तुआरा मकामी वसफों दा कोई अहम इशू है जो तुसां चाहते हो कि असां हाईलाइट करूं, तुसां को लिख भेजो। ई प्रोग्राम दे कमेंट भी तुसां कर सकते हो, इनबॉक्स भी कर सकते हो। ते मैं को ते शकील बोलो, शकील खां आखिर कुछ कोई आखना चाहते हो या मार्के कन्नै घिनो इजाजत? बस दोस्तों को या तुसां जेह्ड़ी गुजारिश कर दित्ती है कि अपने ओपिनियन दा, अपनी राय दा, अपने इन्हां इहो करंदे रह वञनि, कमेंट्स करनि, साडे नाल जुड़े रह वञनि। असां मुल्तान ऐ रहीम ज़ेब ऐ ॿई गुज़रा आहिनि, ॿिए इहे आहिनि, उत्थों थी वञण वाले हालात वाक़ियात दुनिया भर दे विच थी वञण वाले अगरि इस्लामाबाद दे विच, पाकिस्तान दे विच उन्हनि उत्ते गुफ्तगू करंदे रह वेसो ते तुहाडी खिदमत च हाज़िर थींदे रह वेसो। मेहरबानी मार्का।